So simply up to here we have discussed that there was a poor student whose name was French. Yes, one morning he got up but he didn't want to go to school. Why he didn't want to go to school? Teachers made him participate. Yes, because his teacher had given to learn the rules of participle and he didn't know even a single word. So in place of going to school, he decided to spend the day out of yes. और कैसे? By enjoying the chirping of birds and drilling of Persian soldiers. Yes, drilling of Persian soldiers in the open field back, because these things were much more tempting. But he had a strength that resisted all these ideas and ultimately decided to go to school. But in this confusion he got late. Yes. When he came to the town hall, what did he saw? Yes. Yes, he saw a great crowd in front of bulletin board. And as soon as he saw the crowd, he understood there must be some Bad news. bad news, because since last 2 years. 2 years, yes, he was getting all the bad news from there. But without stopping, he moved on from there. रुका नहीं, फिर भी वहाँ से चलता गया. Who stopped him? Blacksmith watched. Yes, a blacksmith watcher stopped him. What did he say? क्या कहा था उसने? Yeah, why are you going so fast? But there's a plenty of time. He understood that he was simply making fun of him. Yes, so he stayed outside the MML's little garden. फिर वो कहता है usually when the class started there was a lot of noise. The noise was so much that it could be heard. Yes, outside the street. And how this has been created? ये noise होता कैसे था? Yes, by opening and closing of desks, lessons repeated in unison, and third, teachers, yeah, ruler rapping on the table. But on that day it was also silent, just like Sunday morning. Yeah, and he was completely depend on the atmosphere of the class just to get in without being seen. He came to the class, but Hamel didn't scold to him. डांटते नहीं. He spoke to him in a very kind and gentle tone. और क्या कहा था? Go and take your seats. We were beginning without you. He went there, sat, and after some time when he controlled over his fear, जब उसने थोड़ा सा डर पे कंट्रोल पा लिया, then he looked up. And as soon as he looked up, he was surprised by the dressing sense of Hamel. Yes, he was surprised by the atmosphere of the class, and he was surprised by the presence of blazers on the back benches. And while he was thinking all this, at the same time he heard MML mounted in chair and said that today the lesson which he was going to give is Last. because an order has come from Berlin. According to that order, from tomorrow, yes, German language will teach in all the schools of Alsace and Lorraine. So what a thunderclap these words were to me. He was completely shocked, and now he understood why there was a crowd in front of bulletin board. And now he was feeling sorry why he has not studied. And the books that seemed to him a little while ago such a noise and so heavy to carry suddenly became his old friends to whom he couldn't give up. Not only the books but MML too. And now he understood MML came there in his beautiful green dress just to give respect to his last lesson, while the blazers came there because they were feeling sorry, because it was their way to thank MML for his 40 years of service
and it was their way to show their respect towards the country which was theirs no more. यहाँ तक हम लोगों ने किया हुआ था, इसके बाद करना है बेटा। तो आज हम लोगों को यहाँ से करना फिर से while I was wondering thinking of all this, पेज नंबर 5 in NCERT। Got it? मिल गया बेटा सबको? Yes, sir. तो वो कहता while I was thinking of all this, I heard my name called। तो कहता while I was thinking all this से मतलब आज अब मैं ये सोच रहा था कि अच्छा सर ने ये ड्रेस इसलिए पहनी हुई है बिकॉज ही वांटेड टू गिव रिस्पेक्ट, ब्लेजर्स इसलिए आए हुए हैं। तो कहता व्हेन आई वाज बिजी थिंकिंग अबाउट ऑल दिस एट द सेम टाइम आई हर्ड माय नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया। और उसने ये क्यों कहा आई हर्ड, सीधा कह देता था माय नेम वाज कॉल्ड। जैसे जब आप कहीं खोए होते, कोई डीप थॉट में होते, तो आपको कोई बुलाता तो एकदम से एहसास नहीं होता, एकदम से लगता तो ये हुआ। He was in great deep thought, then suddenly he realized that his name has been called। तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसका नाम बुलाया गया है। Actually it was my turn to recite। Actually it was my turn to recite means it was my, क्या रिसाइट करने को दिया था सर ने? पार्टिसिपल के रूल दिए हुए थे। तो मीन्स यस इट वॉज माई टर्न टू टेल द रूल ऑफ पार्टिसिपल। मेरा नंबर था, मुझे पार्टिसिपल का रूल सुनाना था। कहता व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। कहता व्हाट वुड आई हैव नॉट गिवन, जब बोलते मैंने क्या कुछ नहीं किया तो इसका मतलब क्या होता है? मैंने ये काम करने को क्या कुछ नहीं किया मीन्स सब कुछ किया, यही तो है। तो सिंपली वो कहता है दैट आई डिड माई बेस्ट। नहीं होता कभी कभी आप इमोशनली हर्ट होते हैं, जैसे नहीं कभी कभी आप पढ़ाई नहीं करते, होता है ना टीचर एक दिन बहुत अच्छे से एक लेक्चर मारदा ढंग का लेक्चर, तो उस लेक्चर से क्या होते हैं आप फुली चार्ज हो जाते हैं। उस दिन के लिए तो चार्ज हो ही जाते हैं, 2 दिन बाद फिर डिस्चार्ज हो जाए वो आता है, लेकिन उस दिन चार्ज हो जाते हैं। तो आज वो कहता है टुडे ही वॉज इमोशनली हर्ट था कि आज इसका लास्ट लेसन है एंड ही डिडंट नो इवन हाउ टू राइट। तो वो कहता आई डिड माई बेस्ट जस्ट टू स्पीक अप द रूल्स ऑफ पार्टिसिपेट जस्ट इन अ क्लियर एंड लाउड टोन विदाउट एनी मिस्टेक। मैंने सोचा आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं सर को पार्टिसिपल का रूल सुना के ही रहूँगा। वो बिल्कुल क्लियर वॉइस में बहुत तेज और बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी हेजिटेशन के सुनाऊँगा। लेकिन सुनाने के लिए याद भी तो होना चाहिए, केवल सोचने से तो नहीं हो जाता, याद तो था नहीं उसे। कहते मैंने सोचा तो कि बिना मिस्टेक के सुनाऊँगा, बट हुआ क्या? बट आई गॉट मिक्स अप द फर्स्ट वर्ड्स। मतलब हाँ जैसे शुरू किया पार्टिसिपल इज द बस फुल स्टॉप, बिकॉज आफ्टर दैट आई डिडंट नो व्हाट इज द मीन्स ऑफ द पार्टिसिपल। तो कहते मैंने सोच तो लिया कि मैं क्या करूँगा, बिना किसी मिस्टेक के पार्टिसिपल के रूल को सुनाऊंगा, लेकिन हुआ ये एग्जैक्टली मैं फर्स्ट वर्ड में मिक्सअप कर गया, अटक गया, भूल गया। और अब मैं वहाँ कैसे खड़ा हुआ था? एंड नाउ आई स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और देखिए जब आप कभी कभी नहीं बता पाते क्वेश्चन, लेकिन अगर आप यू आर नॉट फीलिंग अशेम तो आप सर ऊपर करे बैठे होते हैं, चेहरे पर स्माइली होती है। बट द डे यू आर फीलिंग अशेम, जब शर्म आ रही होती है खुद के ऊपर, फिर कैसे खड़े होते हैं? बाय कीपिंग हेड डाउन। तो वही था, क्योंकि अब वो चारा जब रूल नहीं सुना पाया, सो नाउ ही होल्ड हिज हेड डाउन, होल्ड द डेस्क विच आर, सर झुका के चुपचाप डेस्क को पकड़े खड़ा हुआ था। माई हार्ट बीटिंग, अ जनरेटर वॉज गोइंग ऑन देयर, कि अब तो डांट जरूर पड़ेगी। तब मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मैं चुपचाप सर झुकाए खड़ा हुआ था। तो कहता व्हेन आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस आई हर्ड माई नेम वॉज कॉल्ड एंड एक्चुअली इट वॉज माई टर्न टू टेल द रूल ऑफ participle, though I did my best just to speak up the rules of participle without any mistake, but what happened?
I mix up in the very first word. Now I was feeling ashamed, so I stood there by holding my desk and keeping my eyes downwards. चुपचाप नजर झुका के मैं नीचे खड़ा हुआ। कहता I heard MML say to me, कहता फिर से मैंने सुना क्योंकि नजर तो नीचे ही थी मेरी। Again I heard that MML say to me, वो कहता फिर से मैंने सुना कि MML ने मुझसे कहा I wouldn't scold you little French. The little French, don't worry, I'm not going to scold you. आज मैं आपको डांटूंगा नहीं। कहता मेरे टीचर ने कहा लिटिल फ्रेंड्स डोंट वरी, आज मैं आपको डांटूंगा नहीं। क्यों नहीं डांटूंगा? यू मस्ट फील बैड एनफ, क्योंकि आपको पहले ही कैसा फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग बैड एनफ, आपको पहले ही से बहुत बुरा लग रहा है। जैसे नहीं होता, यू हैव कमिटेड सम मिस्टेक एंड यू हैव रियलाइज्ड इट, यू आर रिग्रेटिंग फॉर दैट, आपको रियलाइज हो कि आपसे गलती हो गई, आप उसके लिए बहुत पछता रहे हैं, दुखी है, तो सामने वाला फिर कभी कभी क्या करता है, छोड़ देता है। चलिए आपको आपकी गलती का एहसास है तो छोड़ता हूँ, लेकिन तो ऐसे ही कहा दैट टुडे आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, आज डांटूंगा नहीं, बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर फीलिंग बैड एनफ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ आपको पहले ही बहुत बुरा लग रहा है, आप बहुत बुरा फील कर रहे हैं, इसलिए आज डांटूंगा तो नहीं। बट सी हाउ इट इज, बट सी हाउ इट इज मतलब बट आई वुड टेल यू वाई इट हैपेंड, ऐसा हुआ क्यों, कि आज आपका लास्ट डे, आपको कुछ नहीं आता है, ये जरूर बताओ। तो उससे कहा पुअर फ्रेंड्स डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू स्कोल्ड यू, मैं आज आपको डांटूंगा नहीं, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि ऐसा हुआ क्यों। और ऐसा हो इसलिए हुआ, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, एंड इट हैपेंस ना। जैसे एग्ज़ाम में हम चाहते खूब गैप मिल जाए, चाहते तो हम यही, मान लो एग्ज़ाम में 10 दिन का गैप मिल जाए, शुरू के दिनों में पढ़ाई करते हैं, सच बताओ करते? कल से शुरू करेंगे, कल से करेंगे, जब भी करते जब 2 ही दिन बचते, कोई ऑप्शन नहीं होता है ना, फिर लगता अब तो करना ही करना, तो यही करना। देखिए मैं आज आपको डांटूंगा नहीं, बट आई वुड टेल यू वन थिंग, लेकिन एक चीज़ जरूर बताऊंगा जिसकी वजह से हुआ, और वो ये था दैट एवरी डे यू ऑल सेड टू योर सेल्फ, डेली आप सब अपने आप से क्या कह रहे थे, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। जैसे आपने 10th जब पास किया तो आपको क्या लग रहा है, 12th अभी तो बहुत दूर है, कब 12th आ गई पता चला, है ना, इधर तो 12th सिलेबस भी शुरू हो गया, पता चला कब 12th के एग्जाम आ जाएंगे पता चलेगा, और कुछ इसी आ रहे अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे अभी तो बहुत टाइम है, और जो ये कहते रहते हैं अभी बहुत टाइम है बहुत टाइम है, उनका भी टाइम आते ही नहीं, उनका टाइम खराब ही हो जाता है। तो यही कहता है कि आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, आप नहीं जानते हैं कुछ भी इस फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, उसका रीजन ये है दैट एवरी डे यू ऑल सेड टू योर सेल्फ दैट यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, आई विल लर्न इट टुमारो, आई विल लर्न इट टुमारो, कि डेली आप अपने आप से क्या कहते रहे कि अभी तो बहुत समय, मैं कल पढ़ाई करूँगा, कल आता है फिर हम क्या कह देते, कल पढ़ाई करूँगा, मिस एक्सक्यूज आज बहुत सर्दी है, आज नहीं कल से पढ़ूंगा, है ना, तो कुछ ना कुछ तो उसका डेली आप अपने आप से यही कहते रहे हैं कि मैं कल पढ़ाई करूँगा, कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा। और इसीलिए अब देख लो, नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट एंड नाउ यू कैन सी दैट बिकॉज ऑफ योर दिस थिंकिंग, कि आपकी ये सोचती ना कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग वेयर यू आर नाउ, उस वजह से अब आप कहाँ आ गए, उस वजह से ये हुआ है दैट दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन बट यू स्टिल डिडंट नो एनीथिंग, कि आपको कुछ भी पता नहीं। तो ये केवल किस वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग, और कौन सी थिंकिंग, दैट आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं कल पढ़ूंगा, इस वजह से ये हुआ है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एलसीएस, उसने कहा पुअर फ्रेंड्स दिस इज नॉट ओनली योर प्रॉब्लम, ये केवल और केवल आपकी समस्या पूरा नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑल एलसीएस, मतलब पूरे एलसीएस के सबकी यही प्रॉब्लम है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वही बीच में अचानक से सी कहाँ से आ गया, एम तो मिस्टर है, एम इधर फ्रेंड है, तो शी कहाँ से आ गया, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। बेटा इंडिया के लिए हम क्या लगाते हैं, ही या शी,
क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं? हाँ तो क्या भी है सी लगाते हैं ना, बिकॉज इट इज आवर मदरलैंड, वो हमारी मदरलैंड है। तो एल्सेस उनकी मदरलैंड है, तो उसे कहा सी पुट्स ऑफ लर्निंग टू टुमारो, मींस इस मदरलैंड पर जितने भी एल्सेस पर लोग हैं उन सब ने कब पर छोड़ दिया, कल पर पढ़ाई छोड़ दी। इस वजह से आप लोगों की ये कंडीशन है दैट दिस इज योर लास्ट ट्रांसलेशन एंड यू स्टिल डिडंट नो हाउ टू इवन राइट इट। आप प्रॉपर लिखना तक नहीं आता, ये आपके उसी वजह से कि कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, उस वजह से हुआ है। और केवल अब यही नहीं, now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be a Frenchman yet you neither speak nor write your own language? And now those fellows out there मतलब कौन, वो जो बाहर के लोग हैं, कौन है बाहर के? Yes, Germans, exactly. Those fellows out there means the Germans. You have given a right to the Germans. जैसे आप किसी से कहो I am an Indian, ओके जैसे स्पीक हिंदी, बस सॉरी आई कांट, ओके जस्ट रीड, तो आप कहें हमें ना लिखना आता ना बोलना आता, तो आदमी क्या कहेगा, यू आर नॉट एन इंडियन, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी इंडियन, यही तो होगा। तो उससे कहा आज आप लोगों ने उन जर्मन्स को एक विशेष अधिकार दे दिया है, और वो अधिकार क्या है? दे वुड आस्क टू यू दैट यू आर नॉट अ फ्रेंचमैन, वो आपसे ये कहेंगे आप फ्रांसीसी हैं ही नहीं। यू आर प्रिटेंडिंग टू बी अ फ्रेंचमैन, आप तो फ्रांसीसी होने का बहाना कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, क्यों? येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, क्योंकि ना तो आप अपनी लैंग्वेज को अच्छे से बोल पा रहे हैं और ना ही अपनी लैंग्वेज को लिख पा रहे हैं। अगर आप फ्रांसीसी होते तो फ्रेंच लिखनी आती, फ्रेंच बोलनी आती, लेकिन ना आप फ्रेंच लिख पाते हैं ना बोल पाते, तो आप फ्रांसीसी नहीं हैं। आप फ्रांसीसी होने का ढोंग बहाना कर रहे हैं। ये अधिकार किसने दे दिया उन्हें? आपने ही दिया है। आपने ये अधिकार जर्मन्स को दे दिया है कि वो आपसे कहेंगे कि आप फ्रांसीसी नहीं है, बल्कि फ्रांसीसी होने का ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट टू अ लिटिल फ्रेंड। नहीं होता कभी कभी टीचर किसी बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछता है, बच्चा नहीं बता पाता, और टीचर फिर जनरल लेक्चर देना शुरू करता है, जनरल डिस्कशन करता है, लेकिन जो खड़ा होता है उसे लगता पूरा मेरे ऊपर आ रहा है, सबसे पूरा वही फील करता है। तो यही था, बेचारा फ्रेंच खड़ा था तो उसे कहा बट यू आर फ्रेंच, यू आर नॉट द वर्स्ट, सबसे बुरी तुम ही नहीं हो। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि सबसे बुरी तुम हो, मैं ये कह रहा हूँ वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विथ। मैं तो ये कह रहा हूँ वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट समवेयर, केवल तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, हम सब की कुछ ना कुछ गलती है। मतलब तुम्हारी मतलब ये केवल स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, ये हम सब की गलती है। बस स्टूडेंट्स की गलती एक है कि उन्होंने क्या करा, दे हैव केप्ट लर्निंग फॉर टुमारो। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने पढ़ाई कल पर छोड़ी, है तो आप लोगों की गलती है। इसके बाद दूसरी गलती योर पेरेंट्स। दूसरी गलती किसकी है? योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स की है। और उनकी गलती क्या है? योर पेरेंट्स वर नॉट एनअप्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, मीन्स योर पेरेंट्स वर नॉट ईगर एनफ टू मेक यू लर्न। वो आपको पढ़ाने के लिए उत्सुक थे ही नहीं, उनका मन ही नहीं था कि आप पढ़ाई करें। उनका मन क्या था? दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल सो हैज़ टू हैव अ लिटिल मनी। और जिस एज में जैसे अभी चल रहा है, अगर पेरेंट्स सभी कहते हैं ऐसा है पढ़ाई करो ना करो, काम धंधा करो, कुछ पैसे कमाओ, मुझे लगता है 80% पढ़ाई छोड़ दो, ज़बरदस्ती तो वैसे ही गन पॉइंट पे कर रहे हैं। तो कहते हैं दूसरा क्या है? दूसरा ये है, पहली गलती आपकी कि आपने पढ़ाई को कब पर छोड़ा? कल पर छोड़ा। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड फॉल्ट वॉज ऑफ योर पेरेंट्स। दूसरी गलती आपके पेरेंट्स की है। एक्चुअली दे डिडंट वांट टू सेंड यू स्कूल, वो चाहते ही नहीं थे आप स्कूल जाए। दे वांटेड टू सेंड यू इन बिग फर्म्स एंड फैक्ट्रीज, वो तो आपको बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भेजना चाहते हैं, सो दैट यू कुड अर्न मनी। वो चाहते ही नहीं थे आप स्कूल जाए, वो तो चाहते थे फैक्ट्री में जाओ, काम करो और कुछ पैसे कमाओ। इसलिए दूसरी गलती उनकी है। एंड आई, और ये नहीं कहा कि तुम्हारी गलती, तुम्हारे पापा की गलती, मेरी कोई गलती नहीं। उसने कहा एंड आई माई सेल्फ, और कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है।
और मेरी गलती क्या, आई हैव सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स बिकॉज अ नंबर ऑफ टाइम इट हैपन्स दैट इन प्लेस ऑफ टीचिंग यू, कई बार तुम्हें पढ़ाने की जगह मैंने क्या कहा, जस्ट गो एंड वाटर माई फ्लावर्स, मैंने अपने पौधों में आपसे पानी डलवाया। शायद उन्हीं दिनों मैंने पढ़ा दिया होता तो हो सकता है कि आपको आज ये आ रहा होता। और केवल यही नहीं किया, कभी कभी मैंने क्या किया, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, मीन्स whenever I wanted to go for fishing, जब भी मेरा मन हुआ मैं क्या करने जाऊँ, फिशिंग करने जाऊँ, मैंने आपको छुट्टी दे दी, जाओ आज छुट्टी। शायद उन्हीं दिनों मैंने बढ़ा दिया होता तो शायद आप जानते, तो उससे कहीं केवल तुम्हारी गलती नहीं है, हम सबकी कहीं ना कहीं गलती। बट द फॉल्ट ऑफ स्टूडेंट्स, बस स्टूडेंट्स की गलती क्या है कि उन्होंने क्या करा, यस दे केप्ट लर्निंग फॉर टुमारो, उन्होंने पढ़ाई कल पर छोड़ी। व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ योर पेरेंट्स, उनकी गलती क्या है, they didn't want to send you to school. yes they didn't want to send you to school, they wanted to send you in big firmware factory so that you could earn money। और मेरी गलती क्या है, I will send you to water. that yes in place of teaching you I asked you to water my plants and whenever I wanted to go for Fishing, I gave you, जब भी फिशिंग का मन हुआ छुट्टी दी। यस तो ये हम सब की गलती है ना कहीं ना कहीं। Then from one thing to another, M. Emil went on to talk to the French language. Then one thing to another means in this way he has discussed on a number of things, बहुत सारे topics पर discussion किया, and ultimately he started discussing about the French language। और लास्ट में किसके बारे में डिस्कशन शुरू किया, लास्ट में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन शुरू किया, सेइंग और क्या कहा फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, कि फ्रेंच लैंग्वेज संसार की कैसी लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज सबको कैसी लगती है, अच्छी लगती है ना। तो उसने यही कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज संसार की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, नॉट ओनली इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड but it is the most clearest as well as most logical। yes तो उसने कहा संसार की सबसे खूबसूरत, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, that we must guard it among us। और ये जब सबसे खूबसूरत है, so now it is our responsibility to guard it। guard का मतलब क्या होता है, गार्ड क्या करते हैं, हाँ सुरक्षा, प्रोटेक्ट करना। बोला फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, कि हमें ऐसे बचाना है, हमें ऐसे सेव करना है, और एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें भूलना नहीं, हमें इसे बचा के रखना, प्रोटेक्ट करना। और क्यों प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज व्हेन अ पर्सन आर एनस्लेव्ड एज अलॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर रिलीजन। कहता है इसलिए बचा के रखना बिकॉज व्हेन अ पर्सन हैज बीन एनस्लेव्ड, कि जब एक व्यक्ति को गुलाम बना दिया जाता है, एंड टिल द टाइम दैट पर्सन हैड हिज लैंग्वेज, और जब तक उस व्यक्ति के पास उसकी लैंग्वेज है, इट सीम्ड एज इफ ही हैड द की ऑफ हिज फ्रीडम, तब तक ऐसा लगता है जैसे उसके पास उसकी स्वतंत्रता की चाबी है। तो गुलाम व्यक्ति के पास लैंग्वेज होने का मतलब उसकी स्वतंत्रता की चाबी कैसे हो सकती है बेटा, बताइए। व्हाट द पोएट ऑथर वांटेड टू से, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, कैसे हाँ कह सकते एक तरीके से। और कोई बताना चाहेगा। देखिए लैंग्वेज क्या है बेटा, लैंग्वेज इज आइडेंटिटी, लैंग्वेज हमारी पहचान है ना। सब एक एग्जाम्पल में देता हूँ, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। वी इंडियंस हैव बीन एनस्लेव्ड बाय ब्रिटिशर्स, इंडियंस को किसने गुलाम बनाया, ब्रिटिशर्स ने गुलाम बनाया, ठीक है। हम इंडियंस क्या करते, अपनी लैंग्वेज भूल जाते, तो क्या मौनी बाबा बन जाते, हम किसकी लैंग्वेज अडॉप्ट करते, किसकी अडॉप्ट कर लेते लैंग्वेज, ब्रिटिशर्स की अडॉप्ट करते ना। हाँ ब्रिटिशर्स की, हम ब्रिटिशर्स से आते, हम उनकी लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेते।
तो पहले वो अपनी लैंग्वेज बोलते, उनकी लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेते, फिर हम अपना कल्चर भूल जाते। कल्चर भी किसके अडॉप्ट करते हैं? कस्टम, ट्रेडिशन। तो हम उन्हीं के जैसे बोल रहे होते, उन्हीं के जैसे कर रहे होते, हमें कभी लगता कि हम उनसे अलग हैं। जब हमें लगता ही नहीं कि हम उनसे अलग हैं तो हम कभी अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करते, और जब फाइट नहीं करते तो क्या फ्रीडम मिलती? नहीं। लेकिन हमारी लैंग्वेज ही अलग थी जो सीधा बताती थी कि हम इनसे अलग हैं। तो उसने यही कहा कि जब तक हमारे पास हमारी लैंग्वेज है तो वो लैंग्वेज नहीं है, वो हमारी की ऑफ फ्रीडम है, और इसीलिए हमें उसे अपने पास रखना है, क्योंकि वो अगर हमारे पास है तो हमें एहसास दिलाती रहेगी कि हम कौन हैं और हम अपनी फ्रीडम के लिए लड़ेंगे। देन यू ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस अ लेसन। और उसके बाद उन्होंने क्या खोला? ग्रामर की बुक खोली और हमें हमारा लेसन पढ़ के बताया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। कहते आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। आज मैं सरप्राइज था। क्यों? सब कुछ समझ में जो आ गया था आज। आज सब कुछ समझ में आ गया तो मैं बहुत आश्चर्यचकित था। आज कैसे हो गया ये भाई? आज तक कभी नहीं आया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। और ऐसा होता है ना कि जो टॉपिक आपको समझ में आ रहा होता है वो कैसा लगता है? बहुत ईजी। तो वही क्या, उस दिन जो कुछ पढ़ा रहे थे सब बहुत ईजी लग रहा था, बहुत ईजी। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। तो मैं समझ गया कि आज तक कुछ भी समझ में नहीं आया और आज सब कुछ समझ में आ गया। इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो आज तक मैंने ध्यान से सुना ही नहीं, सब सर पढ़ा रहे थे, या आज तक मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, या फिर सर ने आज तक इतने अच्छे से पढ़ाया नहीं। बट वॉट एवर द रीजन, आज सब कुछ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। एंड इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। वो कह रहे उस दिन सर इतने अच्छे से पढ़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था जितनी भी नॉलेज उनके पास थी सब एक ही स्ट्रोक में, एक ही झटके में हमें सिखा देना चाह रहे हो। इतने अच्छे से उस दिन मुझे पढ़ा रहे थे। आज यहीं तक रखेंगे, कल ये कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर